हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट जो सीएससी यानी पीएससी एंड यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, तो आज उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम पार्लियामेंट पे शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। पार्लियामेंट इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम यानी इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम होता क्या है, हाउ द इंडियन पार्लियामेंट फंक्शंस इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो Parliament is the legislative organ of the Union government. Parliament is the legislative organ of the Union government. It occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government. So, it is also known as Westminster model of government. So these model of government and governance, we peoples of India or architect of the constitutions had adopted from British or the model of Western models. It is based on the Western models. It is adopted from the Britishes or the Britain models. Article 79 to 122, Article 79 to Article 122 in Part 5th of the Constitutions, deal with the organizations, compositions, durations, officers, procedures, privileges, powers, and so on of the Parliament. So these are the basic, these are the introductions of the Parliament. Now the organizations of Parliament, how the organization of Parliament are works. Under the constitutions, the Parliament of India consists of three parts. What is the three parts? Versus the President, the Council of States, and the House of People. I again repeated, the President, the Council of State, and the House of People. In 1954, the Hindi names, it is called by the names of in Hindi, that is known the Rajya Sabha, and second house is the Lok Sabha. In Parliament, two houses, it is dual houses of the Parliament. That is number one, upper house is the Rajya Sabha and the lower house is the Lok Sabha, were adopted by the Council of States and the House of People respectively. Rajya Sabha is the upper house and Lok Sabha is the lower house of the Parliament. We can say upper house is the second chamber, House of Elders, and Lok Sabha is the lower house, that is first chamber or people house or popular house. The former represents the states and union territories of the Indian Union, while the latter represents the people of India as a whole. So, composition, how the two houses are composed, दोनों हाउसेस कैसे कंपोजिशंस बनी इनकी, कैसे बने ये. सो कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट अपर हाउस, दैट इज द राज्यसभा, इसके बारे में कैसे ये चला, कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे कंपोज्ड हुआ, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा जो होती है वो फिक्स्ड होती है, दैट इज द 250 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. उसमें से 238 जो MPs होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं. क्या? आई अगेन रिपीटेड, 250 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा है. उसमें से 238 रिप्रेजेंट्स करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को, और 12 जो अदर्स होते हैं, ये जो 238 है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. फ्रेंड्स, इसके ज़्यादा मिसकंसेप्शन में मत रहें, ये डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. और अनदर 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राज्यसभा में एट प्रेजेंट राज्यसभा में 245 members. Of these,
229 members represent the states and 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president. फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. आई अगेन रिपीटेड, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories. To the states and union territories. इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दूं, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेट्स होता है. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स के जितने भी हैं वो राज्यसभा में जो आते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके, वो आर इलेक्टेड बाय द, कौन इलेक्टेड करते हैं उनको? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. जो राज्यसभा में इलेक्टेड हो के आते हैं उनको कौन इलेक्शन में विक्ट्री दिलाता है, कौन वोट कास्ट करता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स होती हैं उनके इलेक्टेड एमएलएस. और इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. बाय मीन्स द सिंगल ट्रांसफरेबल vote, the seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of populations. जिस states की जितनी populations होगी उस population के बेस पर वहाँ के रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट के राज्यसभा में लाए जाते हैं उसको उतनी रिप्रेजेंटेशन की सीट्स एलोकेट की जाती हैं. इसी तरीके से जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेरीज करते हैं स्टेट टू स्टेट को. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर्स हैं और त्रिपुरा में 1 मेंबर है राज्यसभा से. रीज़न क्या है? हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो है वो उत्तर प्रदेश है और त्रिपुरा में नंबर ऑफ पॉपुलेशंस कम है. दैट्स वाई त्रिपुरा की सीट एक है राज्यसभा के लिए और उत्तर प्रदेश से 31 है. इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके राज्यसभा में आते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव्स हर यूनियन टेरिटरीज के होते हैं या राज्यसभा में, और वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस. ये इलेक्शंस, दिस इलेक्शन इज आल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट out of the 8 union territories, out of the 8 union territories, only 2. Which 2 territories? That is Delhi and Puducherry have representation in Rajya Sabha. I again repeat it. Out of 8 union territories, only 2 territories. Out of 8 union territories, only 2. That is Delhi and Puducherry, जहाँ दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, have representation in Rajya Sabha. The population of other 6 union territories are too small to have any representative in the Rajya Sabha. नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे किए जाते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में 12 होते हैं और उनको अपॉइंट कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए. फ्रॉम पीपल, लोगों से. हु हैव, किस कैटेगरीज पे? जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट है, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में या फिर क्रिकेट में. The rationale behind this principle of nomination is to provide eminent person place in the Rajya Sabha without going through the process of elections. ये बिना इलेक्शन प्रोसेस के ये प्रोसेस किया जाता है. ये नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि अमेरिकन स्टेट है कि अमेरिकन जैसी स्टेट जो है, वह स्नेट जो होता है अमेरिका में, जो अपर हाउस जिसको हम स्नेट बोलते हैं, वहाँ पर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की. नाउ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ नाउन बाय द पीपल हाउस, पॉपुलर हाउस,
पीपल ऑफ द हाउस, जहाँ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री खुद कास्ट करते हैं वोट और अपनी चॉइस से अपने एमपीज को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ से इलेक्ट करके लोकसभा में भेजते हैं। दैट्स वाई हम उसको पीपल ऑफ द हाउस कहते हैं इन डेमोक्रेसी। सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो होती है वो फिक्स्ड है 552। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट होते हैं। 20 मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज होते हैं। और सिर्फ 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और वो कौन से होते हैं? जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से होते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब हुआ वो पर्सन जिनके पेरेंट्स में से एक जेंडर जो है वो इंडियंस है और सेकंड जेंडर फॉरेनर है। दैट इज़ नोन एज द एंग्लो इंडियंस। एट प्रेजेंट लोकसभा में 542 पर इलेक्शंस हुए थे 2019 में, और आउट ऑफ दीज कि 530 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट्स को एंड 13 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे मोर देन 13 यूनियन टेरिटरीज को, और सिर्फ 2 एंग्लो इंडियंस ऐसे थे जो मेंबर्स जिनको एंग्लो इंडियन से लिया गया था वो नॉमिनेटेड थे बाय द प्रेसिडेंट। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को करते हैं, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स जो होती है लोकसभा में वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। किसके द्वारा? बाय द पीपल्स फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस बेस पर है ये प्रिंसिपल? कौन सा है? एडल्ट फ्रेंचाइज वाला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन जो है हु इज अबाउट 18 years of age and who is not disqualified under the provisions of the constitutions or any law is eligible to vote at such elections. So ये voting age was reduced की गई थी। The voting age was reduced from 21 to 18 years। पहले ये 21 हुआ करती थी, बाद में इसको रिड्यूस कर दिया, 18 साल तक लाया, और ये बाय द कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग इसको एज को रिड्यूस करके 21 से 18 ईयर्स किया गया, और आज ये 18 ईयर्स है। और ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर इट। सेकंड, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, the constitution जो है has empowered the parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of the union territories in the Lok Sabha। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी एम्पावर किया है पार्लियामेंट को कि वो प्रेस्क्राइब करे अपने मैनर ऑफ चूजिंग को, कि वो यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर इलेक्ट करे। इसके अकॉर्डिंग Parliament has enacted the Union Territories Direct Election to the House of the Peoples Act 1965, by which the members of Lok Sabha from the Union Territories are also chosen by direct elections when in 1965 Act। Nominated members जो होते हैं फ्रेंड्स, नंबर 3rd पॉइंट, President can nominate only 2 members in Lok Sabha but from the Anglo-Indians। The President can nominate only 2 members from Anglo-Indians if the community, Anglo-Indian community, if the community is not adequately represented in the Lok Sabha. Originally this provision was to operate till 1960 but has been extended till 2010 by the 79th Constitutional Amendment Act 1999, and today above 2010 के बाद भी इसको एक्सटेंड किया गया और अप टू दिस टाइम ये चल रहा है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा कैसे होता है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स रिलेट करते हैं इस सिस्टम के साथ लोकसभा के इलेक्शन से। वो क्या है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं,
और वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, और हर स्टेट जो डिवाइड होती है टू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर स्टेट डिवाइडेड होती है एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाता है ये प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेड डिवाइड की जाती हैं। हर स्टेट को अलॉट किया जाता है नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में, और उस मैनर्स में दैट द रेशियो बिटवीन दैट मैन नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इन द सेम फॉर ऑल स्टेट्स। ये प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन। जब 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन जिस स्टेट्स में होती है वहाँ पर ये मेथड जो है, ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं किया जाता। हर स्टेट डिवाइडेड होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे इन सच ए मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स allotted to it is the same throughout the state. In brief, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि there is uniformity of representation in two respects. Which two respects? Number one, between the different states and between the different constituencies in the same state. I again repeat it, between the different states and between the different constituencies in the same manner, same states. The expression population जो means expression of population जो होता है उसका मतलब जो होता है populations जो ascertain की जाती है at the preceding census, किसके बेस पर? सेंसस के बेस पर, और उस पर रेलिवेंट फिगर्स जो है पब्लिश्ड की जाती है। पहले सेंसस होता है, सेंसस से ये फिगर उठाई जाती है कि स्टेट्स की कितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट फिगर बना के उसको पब्लिश किया जाता है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, हर सेंसस के बाद एक रीएडजस्टमेंट की जाती है। आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन किस बेस पे? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन द स्टेट्स। नंबर सेकंड, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पार्लियामेंट एम्पावर करता है टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर टू विच इट इज टू बी मेड। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ये एनेक्ट करता है डिलिमिटेशन प्रोसेस को, डिलिमिटेशन कमीशन को एनेक्ट करता है, और ये डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट की जाती है जब फर्दर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। और ये फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में कब एनेक्ट किया गया था? फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट 1952 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1972 में, उसके बाद 2002 में। इस पर्पज़ के लिए, किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 42nd और 2002 ऑनवर्ड अब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है उस टाइम साइन हो चुका था, और 2025 तक डिलिमिटेशन कमीशन साइंड है। 2025 में नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में एनेक्ट होगा। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, उसने फ्रोज किया था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा और टू दी स्टेट्स, किसको? स्टेट्स को, और डिवीजन ऑफ ई स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल दी ईयर कब तक? 2000 तक, एट दी 1971 लेवल। 1971 लेवल पर 2000 तक इसको फ्रीज किया था। ये मेन रीएडजस्टमेंट हुआ था, एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 ईयर्स। इसको फिर आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया 25 साल के लिए, अप टू 2026, यानी 25 मैंने अभी बताया आपको, तो नेक्स्ट इसका 25 तक तो ये फिक्स्ड है, और नेक्स्ट इसका डिलिमिटेशन कमीशन जो होगा वो 25 ईयर्स के बाद होने वाले हैं 2026 में। और ये कब हुआ था? नेक्स्ट फिर बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में लाया गया, उसके अकॉर्डिंग ये 25 साल के लिए फ्रीज किया गया था। विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स, इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव था, क्या था? एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स।
84th अमेंडमेंट एक्ट में जो 2001 में बनाया गया था, उसमें ये भी एम्पावर किया गया था गवर्नमेंट ने कि टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर्स। और कौन सी फिगर्स? जो 1991 सेंसस में थी। लेटर ऑन 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, उसमें ये प्रोवाइड किया गया कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो ऑन दी बेसिस पर 2001 सेंसस के बेसिस पर होनी चाहिए, ऑन दी बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस। इसी तरीके से दिस कैन बी डन विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर किन के लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होती वो रिजर्वेशंस। दो द कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अबंडन द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने ये अबंडन कर दिया है कि सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं रखना चाहिए। इसने प्रोवाइड्स किया फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियोज। ये किसके बेस पर? पॉपुलेशन रेशियो के बेस पर जो है एलोकेट किया गया। ओरिजिनली रिजर्वेशन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स थी, दैट इज अप टू 1960 तक, बट इट हैज बीन एक्सटेंडेड कंटिन्यूसली सिंस देन बाय 10 ईयर्स ईच टाइम। अब अंडर 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999 ये रिजर्वेशन इज टू लास्ट अंटिल 2010 थी, और अब ये 2010 से ऑनवर्ड एक्सटेंड की गई, यानी 2000 नेक्स्ट 2025। Those seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. They are elected by all the voters in a constituency without any separate electorate. A member of scheduled caste and scheduled tribes is also not debarred from contesting a general seat. अगर कोई भी रिजर्वेशन सीट्स वाला कैंडिडेट्स जनरल में कंटेस्ट करना चाहता तो उसको डिबार नहीं किया जाता। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने ये प्रोवाइड किया गया था कि रिफिक्सिंग ऑफ द रिजर्व सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 1991 सेंसस as applied to rationalization of the general seats. Later 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया और उसने प्रोवाइड किया गया कि रिफिक्सिंग ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए जो रिजर्व किया जाएगा वो 1991 सेंसस के बेस पर नहीं बल्कि 2001 के सेंसस के बेस पर होना चाहिए। So friends, these are the representations of reserve quota or scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha, and the composition of 2 houses in Lok Sabha. So the lecture is over, and wait for the next lectures. We will bring the next latest lectures on tomorrow, that is the durations of the 2 houses, how the proportional representation not adopted, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज कैसे कितना होता है और वो कैसे वर्क करते हैं, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर द वीडियोस, लिसन्स वेरी कॉन्सेंट्रेटली फॉर बोथ objective and preliminary and mains point of views. So all those aspirants who are preparing for the Union Public Service Commissions and Public Service Commissions for provincial civil service examinations and including other competitive examinations, all the aspirants can listen it and learn everything which I have discussed with you, my dear friends. So thank you so much, and Jai Hind. Wait for the next lecture.